Okay, hello, welcome again to a very exciting session today. So, hopefully, all of you are doing fine, everybody is good, perfect, and enjoying. So, we have read about distance formula in the previous class, and today we will take questions on the distance formula and try to learn the application of the distance formula, like where we can apply the distance formula and we'll try to see what other types of question we can ask. First of all, there is a very direct question. Find the distance. You are given with 2 points and you can simply apply the formula. So let's begin our journey, and hopefully all of you are ready with your pen and paper so that you can keep on solving the questions. So let's begin. First of all, we'll revise what we have read in the yesterday, like the previous class. So we have read that if there are 2 points, if there are 2 points, let's call them A, and the coordinates of A are x1, y1, and the coordinates of B are x2, y2. So we have already seen the distance between these two will be, distance means if you join them by the line, straight line, the length of this line would be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and then we take under root. We have already seen this. What we do, we just applied Pythagoras theorem and applied the simple logic of coordinate geometry. Okay, so let's begin our logic. Let's start our day with a very easy and basic question just to warm you all up. I'll write down the formula on the left hand side. I'll not rub this. Distance formula is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, ठीक है. So let's begin. Very easy question. You are given with 2 points. Let's say 1 comma minus 4 and 7 comma 8. You have to find the distance between these 2 points. Okay. So what simple logic it? Let's call it A. So A is 1 comma minus 4. Here is A and here is B. That is 7 comma 8. Okay. Obviously, this will not be a straight line. It will be some sort of vertical line like this. But what do we need? We need x1 and y1. We are with x1 and y1. And then we need x2 and y2. We are here with x2 and y2. So what's the formula? AB is equal to, let's put the form values, x2, that's 7, minus 1 the whole square, plus 8 minus, now what is y1 here? This is y2. Y1 is minus 4. Okay, let's put this in a small little bracket. So 7 minus 1 becomes 6, this becomes 36, this becomes 8 plus 4, this becomes 144. Take the under root, this becomes under root 180. And this is your answer. Very easy. Okay, very easy distance formula. You have to just apply the formula. But please try to know how we derived this formula. Today Narayan Murthy has given an interview. एक interview दिया है नारायण मूर्ति ने. He's a well, obviously all of you know who Narayan Murthy is. तो उन्होंने कहा है कि no matter we are producing engineers, we are producing doctors, we are producing jobs, हम jobs दे रहे हैं, engineers दे रहे हैं, बट वी आर नॉट इनोवेटर्स. हम नई चीज़ें नहीं डेवलप कर पा रहे हैं. पता है रीज़न क्या है? रीज़न है कि क्लास 10th या आप मान लो क्लास 6 से बच्चों को क्वेश्चन का फॉर्मूला, बस फॉर्मूला रटाने पे वो है कि ध्यान दिया जाता है. दे फोकस ओनली ऑन मगिंग अप द फॉर्मूला. उसकी डिस्टेंस फार्मूला ये होता है. ठीक है,
बड़े से बड़ा सवाल भी इस फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। बट जब तुमको यही नहीं पता है कि ये डिराइव कैसे हुआ, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, तो जो सोचने की एक क्षमता होती है वो कैसे आएगी। तुम ठीक है, तुम सॉल्व कर लो इसे क्वेश्चन, कल को तुम बोर्ड्स में 90% ले आओ, तुम्हारी नौकरी भी लग गई, ठीक है। बट वॉट अबाउट इनोवेशन, हाउ विल वी इनोवेट न्यू थिंग्स। जब तक हम अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तो कैसे इनोवेट कर पाएंगे। और मार्क माई वर्ड्स, सिर्फ फॉर्मूले रट के कभी कोई सक्सेसफुल बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, छोटी मोटी कोई नौकरी लग जाएगी, ठीक है, 10th में नंबर आ गए, 12th में नंबर आ जाएंगे फॉर्मूला रट के। पर इनोवेशन जैसी भी तो कोई चीज़ है ना, इंडिया को नोबेल प्राइज़ कब से नहीं मिला है, लास्ट इंडिया को नोबेल प्राइज़ कब मिला तो मुझे तो याद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नए फॉर्मूले बनाने ही, जो पुरानी चीज़ें बता दी गई हैं वही फॉर्मूला रटा और चल दी। जब इस फॉर्मूले को डीप से पढ़ा, डीप स्टडी की इस फॉर्मूले की, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो मे बी हम कुछ और डेवलप कर सकें, कुछ और नई चीज़ें निकाल सकें। बस ये रट लिया ये फॉर्मूला होता है, ये सवाल कर लिया, वाह डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम मास्टर हो गए। इतना इजी नहीं है ना। इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट टॉप वर्ल्ड की रैंकिंग में टॉप 250 में नहीं आता है, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन लर्निंग, वी आर फोकसिंग ऑन मगिंग अप। ठीक है, मेरी एक क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें मैंने बताया है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। तो सबको पता होता है फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। पर वो कैसे आ रहा है, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक कल को नई चीजें कैसे निकालोगे बच्चों, है ना। तो चलो, लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन लर्निंग एंड नॉट मगिंग इट अप। मैथ्स को मैथ्स रहने दो। वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट रट्टा मार के नहीं होता है। लोग कहते हैं कि हिस्ट्री रट्टा मार के, बट अगर हिस्ट्री की डीप से स्टडी की जाए, अच्छे से समझा जाए, तो इट इज, उसका जो लॉजिक लेवल है, दैट्स जस्ट पैरेलल टू मैथ्स। ओके, सो किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से, बहुत टाइम दे के, बहुत प्यार से पढ़ना है। ये नहीं कि बस ये डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, कल सेक्शन फार्मूला पढ़ लेंगे और सवाल लगा देंगे, ठीक है। तो अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला मेरे ख्याल से अब आप लोग सवाल लगा लोगे, शीट में डाल दूंगा, प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना उसे। कोई डाउट हो कमेंट कर देना। अब हम पढ़ेंगे कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स? तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। पॉइंट्स which lie on the same line, points which lie on the same line are called collinear points. तो collinear points मतलब वो एक लाइन है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स ये कोलिनियर कहे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि if I say suppose there is this point, this point, this point, let's call it A, B and C. So can you draw a straight line such that A, B, C are on the single line, on the same line? For example, if I draw A and C, so no matter what you do, आप कभी से ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे एक ही लाइन से, है ना। एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी। सो हेयर ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। पर अगर यही बी यहाँ कहीं होता है इस लाइन पे, देन ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। वेरी गुड, समझ गए हम। कोलिनियर पॉइंट्स ये होते हैं। अच्छा, नाउ आई एम राइटिंग वन स्टेटमेंट, टू पॉइंट्स अगर सिर्फ दो पॉइंट दिए, दे आर ऑलवेज कोलिनियर। दे आर ऑलवेज कोलिनियर। दो पॉइंट जो हैं, अगर दो पॉइंट दिए, सपोज एक पॉइंट ब्लू से बनाता हूं मैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो तुम इसको तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ ही सकते हो। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट कहीं भी है, तो दो पॉइंट अगर दिए तो वो तो हमेशा कोलिनियर ही होंगे। दो पॉइंट को तो एक लाइन से जोड़ा जा सकता है।
ठीक, समझ गए? ठीक, दो पॉइंट जो होंगे वो तो हमेशा कोलिनियर होंगे, क्योंकि एक लाइन दो पॉइंट को जोड़ सकती है, वो पॉइंट कहीं भी हो। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इसको भी हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ सकते हैं। जोड़ दिया, ठीक है। ये स्ट्रेट नहीं बनी, स्केल यूज करना पड़ेगा। पर मुद्दे की बात ये, कंसेप्ट ये है कि जो दो पॉइंट्स हैं दे विल आर ऑलवेज कोलिनियर बिकॉज वी कैन जॉइन देम बाय ए स्ट्रेट लाइन। ए स्ट्रेट लाइन कैन ऑलवेज जॉइन टू पॉइंट्स। तो टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, हमने ये सीखा। कोलिनियर होते हैं मतलब कि एक लाइन पे लाई करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थ्री पॉइंट्स। तीन पॉइंट, थ्री पॉइंट्स, दे कैन बी कोलिनियर, दे कैन नॉट बी कोलिनियर, है ना। वो कोलिनियर हो सकते हैं, कोलिनियर नहीं भी हो सकते हैं। सपोज एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ए B C. Here I can see that A B C lie on the same line, so I can say A B C are collinear. ठीक। अच्छा, सपोज A यहाँ है, B यहाँ है और C यहाँ है। अब A B C को आप एक ही लाइन से ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ऐसे लाइन बनानी पड़ेगी, लाइन ऐसे मुड़ जाएगी, लाइन टूट जाएगी, लाइन नहीं बन सकती है। देन थ्री पॉइंट्स दे मे बी कोलिनियर और मे नॉट बी कोलिनियर, है ना। तो जो थ्री पॉइंट्स हैं दे आर, दे मे और मे नॉट बी कोलिनियर, है ना। इजी है ये बात समझना। दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर है, पर तीन पॉइंट वो कोलिनियर हो भी सकते हैं या कोलिनियर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, क्लियर? एनी डाउट्स? कोई डाउट हो तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट्स, पर आई डोंट गेस देयर विल बी अ डाउट। तो अब ये सब हमने कोलिनियर सीख लिया, टू पॉइंट सीख लिए, थ्री पॉइंट सीख लिए। अब थोड़ा हम थ्री पॉइंट्स पे और अंदर चलते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लाइन है ए बी और सी, ठीक, ठीक है। ए बी दिया हुआ है, नहीं, ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और सी बी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी दिया है ये, आई विल राइट डाउन, ए सी है 5 सेंटीमीटर और सी बी है 7 सेंटीमीटर। अब मैं पूछ रहा हूँ ए बी कितना होगा, एंड गिवन ए सी बी लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एकदम सीधी लाइन है। सो व्हाट इज ए बी? ऑब्वियसली ए सी प्लस सी बी, क्लियर? ए सी प्लस सी बी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब इसी को मैं बदल देता हूँ। यहाँ पे एक ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है। अब ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7। अब ए सी कितना हुआ? अब क्या तुम कह सकते हो कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी? नो, यू कांट से, बिकॉज हियर इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। और खुद से सोचो ना, दिमाग से सोचो, एक स्ट्रेट लाइन का एक हिस्सा ए सी बन रहा है, एक हिस्सा सी बी बन रहा है, दोनों हिस्सों को जोड़ के ए बी बन रहा है, तो ए सी प्लस सी बी से हमें ए बी मिल जाएगा। ठीक, क्लियर? क्लियर है ये बात? तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि in case of, if three points are on same line, or if three points are collinear, if three points let's call them A B C in the same order are collinear, then
AB is equal to AC plus CB. Sorry, yeah, not in this order. ACB. ठीक है. A, C, B are collinear, then this relation should hold true. And if this relation doesn't hold true, if this is not true, we can say the points are not collinear. Is it true? So in order to prove the points are collinear, what we have to prove? We have to take one part of this, the other part of this, and sum that up and prove that equal to the entire length of the line. Clear? AC लिया, CB लिया, AC प्लस CB किया और उसे AB के बराबर प्रूव किया. ठीक है. अच्छा, एक और चीज याद रखना, अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन. इफ अ पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, देन 3 पॉइंट से बनेगा ट्रायंगल. ठीक, ठीक है. अच्छा, एक होमवर्क है, अगर 4 पॉइंट है जो कोलिनियर नहीं है तब क्या बनेगा? अब कोई स्क्वायर मत बोलना प्लीज, समझे? ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे. तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी. और कोलिनियर नहीं है, देन it will form a triangle. Clear? Any doubts? No doubts. तो चलो एक क्वेश्चन थोड़ा इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डालते हैं इसी चीज को. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेट्स होंगे. 3 पॉइंट दिए हैं. ए x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3. You have to check, suppose these are the points A, B and C in the same order, you have to, they are given in the same order, you have to check if they lie on the same line, whether A, B and C are collinear or not. This is the question. 3 points are given, A, B and C, and you have to check whether they are collinear or not. Very easy. Everybody has noted down the question? 3 points are given, you have to check whether they are collinear or not. Okay, no issues. We'll draw 3 points. x1, y1. x2, y2. x3, y3. ठीक है, 3 पॉइंट्स हमने मार्क कर ले, कहीं भी मार्क कर लो, हमें क्या पता कहाँ कोई कौन होगा, बट सेम ऑर्डर में. तो if they are collinear, that is, if it is a straight line, then AB plus BC should be equal to AC. This part plus this part should be equal to the whole part. Clear? AB क्या होता है बेटा? Distance between A and B. Distance formula लगा दो, क्या हो जाएगा? x2 minus x1 the whole square plus y2 minus 1 y1 the whole square का अंडर रूट. प्लस BC क्या हो जाएगा? x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ये भी वैल्यू आ जाएगी. फिर तुम AC भी निकाल लोगे. AC कैसे निकालोगे? x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लोगे और फिर चेक कर लोगे कि क्या if this relation holds true or not. If it holds true, then obviously these points are collinear, but if it doesn't hold true,
then the points are not collinear but they form a triangle. Clear? Easy. तो कोलिनियर पॉइंट्स चेक करने के लिए क्या करना है, दो छोटे डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं, मतलब छोटे वाले ए बी और बी सी, और फिर एक जो बड़ा वाला डिस्टेंस है उसके बाद चेक करना है कि उसका सम उस बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर है या नहीं. क्लियर? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स इन इट? होपफुली नॉट. तो पॉइंट्स की हम कोलिनियरिटी कैसे चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन से समझ गए. क्लियर? अच्छा, अब एक और इसमें क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल एक उनका फेवरेट क्वेश्चन वो बनाते हैं, तो कोलिनियरिटी समझ में आ गई ना. अभी क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके. ओके, तो कोलिनियर पॉइंट्स